Hello class, welcome to another video of Shakespeare's one of great tragedies, King Lear. So, very first, just look at the key facts of King Lear. Title: The Tragedy of King Lear. Author: William Shakespeare. Genre: tragedy. Written 1605-1606. Sources: Legend of Lear of Britain from Hollin's Chronicles. Setting: ancient Britain, and tragic flaw of King Lear is excessive pride and blindness to truth and fond of flattery. Major themes: authority versus chaos, justice and injustice. Courts seem indifferent, suffering is widespread, filial ingratitude because Lear's daughters betray him, Gloucester betrayed by Edmund, his illegitimate son. Madness versus insight. Lear goes mad but gains wisdom. Gloucester loses sight but sees truth. Nature. Human cruelty seen as unnatural. Nature as both chaos and healing force. Appearance versus reality means flattery versus honesty because Cordelia speaks honestly, but her sisters speaks in flattery. Suffering and redemption. Lear and Gloucester learn through suffering. Legitimacy versus bastardy. Edmund's ambition challenges hereditary order. Motive and symbols. Motifs means recurring elements, जो elements बार बार आते रहते हैं. Madness. Lear's madness symbolizes moral disorder. Disguise Kent as Caius because Lear's fast friend Kent disguised as Caius. Edgar disguised as poor Tom. Truth hidden beneath the false identity. Justice, cosmic justice question as flies to wanton boys. Betrayal of kinship. Daughters against father, son against father. Blindness and vision. Gloucester's literal blindness versus Lear's metaphorical blindness. Storm externalizes Lear's inner turmoil and the chaos in the kingdom. Symbols in King Lear. Storm on Heath. Lear's storm on Heath is the symbol of Lear's inner conflict and breakdown of order. Blindness. So blindness is the symbol of Gloucester's physical blindness, inability to see truth, and Lear's blindness to Cordelia's love. Nothing. Cordelia's word nothing symbolizes truth of love cannot be measured, theme of emptiness and futility. Animals. Lear calls Goneril and Regan tigers and serpents. Clothing. Disguise, deception, authority. The wheel of fortune, rise and fall of character. So the wheel of fortune is the symbol of rise and fall of characters, Gloucester, Lear, and Edmund. Language and style. So King Lear is written in blank verse except some speeches made in madness by Lear and some speeches spoken by lower characters of the play. So look at the characters of the play.
chief protagonist, King Lear, who has 3 daughters. The eldest is Gonril, and uh, and Gonril has a husband who is extremely gentleman, Duke of Albany, and younger daughter Regan, who has husband Duke of Cornwall, who is a monster in this drama, and youngest is Cordelia, who gets married to King of France. King Lear has a loyal friend, fast friend, Earl of Kent, and has a loyal fool named Fool. Gonril has a steward named Oswald who plays an important role. And the plot of King Lear also has a subplot, and the chief protagonist of the plot is Earl of Gloucester, who is very loyal to King Lear. Earl of Gloucester also has a case of is also a case of misjudgment. He also cannot differentiate between the real love and the false love of his sons. Earl of Gloucester, Edmund, who is a bastard son of Gloucester and who is a real villain in the play. He has another son who is loyal son, but Earl of Gloucester is not able to recognize his true and loyal son, means Edgar, and he banishes him on the advice of his bastard son Edmund. Edmund has also one aspect of his life. Edmund has love affair with both of the daughters of King Lear, Regan and Gonril. एडमंड के संबंध किंग लियर की दोनों बेटियों से हैं, कॉर्नरिल से भी है और रीगन से भी है, बहुत पहले से. So look at the story and plot of the play King Lear. The play starts with the ceremony of King Lear's division of his kingdom among his 3 daughters. तो जो ये प्ले है वो स्टार्ट होता है किंग लियर की सेरेमनी से. आज किंग लियर अपने ये किंगडम को 3 हिस्सों में बांटना चाहता है. And he says that he will offer the largest share to the one who loves him most, who express her love to her father. वो उसी लड़की को अपना जो ये किंगडम है उसका जो ये की शेयर है वो उसी लड़की को ज्यादा वो देगा जो लड़की उसकी ज्यादा प्रशंसा करेगी. ये इसकी शर्त है, ये किंग लियर की शर्त है. सो वेरी फर्स्ट, Gonril, the eldest daughter and the wife of Albany, says that she loves him more than words can wills the matter. वो कहती है कि मैं अपने पिता से इतना प्रेम करती हूं कि उनके सामने मेरे जो
कि मेरा जो ये प्रेम है वो कोई शब्द इस दुनिया में बयां नहीं कर सकता. And she also claims that her love to her father is greater than eyesight, my liberty, my space or even my life. कि मेरा जो प्रेम है अपने पिता के लिए वो मेरी आंखों की जो रोशनी है उनसे भी ज्यादा है, मेरी जो आजादी है उससे भी ज्यादा है, मेरा जो इस दुनिया में स्पेस है उससे भी ज्यादा है, यहां तक कि मैं अपने पिता को अपने जीवन से भी ज्यादा प्रेम करती हूं. जस्ट आफ्टर Conrail, Regan also pasted the same words, same sentences of her elder sister Conrail, but she crosses the limit of her sister by saying nothing brings her greater joy than her love for her father. She also says everything she values in life. वो ये भी कहती है कि मेरे जीवन में हर चीज बहुत महत्ता रखती है, चाहे मेरा वो जीवन हो या मेरे वो दोस्त हो या मेरा वो हस्बैंड हो या मेरा वो आनंद हो या मेरा वो सुख हो. बट मीन्स नथिंग बिफोर माई फादर, लेकिन इन सब की कोई भी वैल्यू नहीं है मेरे फादर के सामने. तो इस प्रकार से इन ए वेरी exaggerated manner both of the sister expresses her love. Van turns to Cordelia, but Cordelia refuses to flatter, simply saying nothing. वो कहती है I want to say nothing according to her bond, no more no less. वो कहती है कि मेरा जो प्रेम है मेरे फादर के लिए ना तो वो कम है ना ही वो कुछ ज्यादा है. So at this being humiliated, Lear disinherits or disowns her youngest daughter Cordelia and divides his kingdom between Gonril and Cordelia, and he just retained a retinue of 100 knights and privilege of staying with each daughter in turn. तो वो अपना सारा जो राजपाट है वो अपनी दोनों बेटियों के नाम कर देता है और वो कहता है कि मैं अपने पास केवल 100 लोगों का एक ये ग्रुप, एक रिटेन्यू यानी कि एक ये जो है ये काफिला बस मैं अपने पास में रखूंगा और मैं ये बारी बारी से अपनी मैं बेटियों के साथ रहूंगा. इन द मीन टाइम two suitors of Cordelia arrives in the ceremony. Duke of Burgundy and Duke of France, but in this ceremony Duke of Burgundy returns from the ceremony after learning that Cordelia will get nothing, but Duke of France puts his proposal to get married to Cordelia. And after this, Earl of Kent tries to intercede in favor of Cordelia, but Lear exiles him too in anger. Earl of Kent tries to intercede in favor of Cordelia, but Lear exiles him too in his anger. लेकिन वो अपने दोस्त अर्ल ऑफ कैंट को वो गुस्से में अपने दरबार से इंसल्ट करके वहां से वो निकाल देता है. तो इसके बाद ड्यूक ऑफ फ्रांस proposes Cordelia to get married, and after getting married, Cordelia goes with Duke of France to France. As I told you that there is a subplot of Gloucester, and this is also a case of misjudgment because Gloucester also is not able to his real loyal son, and he misjudges his legitimate son.
Edgar. So Gloucester's bastard son Edmund also plot a conspiracy against his legitimate brother Edgar to usurp the land of his brother Edgar and the whole property of his brother Edgar. Edmund forges a letter in handwriting of his brother Edgar and shows to his father that letter in writing of his brother Edgar, in which it was written that he was going to murder his father after usurping whole property. So Gloucester exiles his loyal son एडगर. जो एडमंड होता है, जो ग्लोसेस्टर का बास्टर्ड सन होता है, वो अपने वो भाई की हैंडराइटिंग में एक लेटर को लिखता है, एक वो षड्यंत्र रचता है. उस लेटर में ये लिखा होता है कि जो उसका जो ये भाई है एडगर, वो अपने पिता की मौत कर देगा सारी प्रॉपर्टी को हड़पने के बाद. और ये लेटर जो एडमंड है वो अपने पिता को दिखाता है. तो इस बात पर जो एडगर है वो बगैर कुछ सोचे समझे अपने छोटे बेटे को, अपने लॉयल बेटे को अपने राजपाट से बाहर निकाल देता है. ना अब क्योंकि किंग लेयर ने अपनी सारी संपत्ति, सारा राजपाट अपनी बेटियों को दे दिया था, तो किंग लियर के साथ भी बिल्कुल वही होता है जो बागबान पिक्चर में अमिताभ बच्चन के साथ होता. जैसे कि जब अमिताभ बच्चन सारा राजपाट अपने वो बेटे को दे देता है, वो सब कुछ अपने वो लड़कों को देता है, लेकिन उसी के बाद वो उसके जो सब बच्चे होते हैं, उसके जो ये बेटे होते हैं, वो उसके साथ मिसट्रीटमेंट एंड मिसबिहेवियर करना शुरू कर देता है. बिल्कुल ऐसे ही जब किंग लियर अपना सारा राजपाट अपनी बेटियों के नाम कर देता है, तो उसकी दोनों की दोनों जो बेटियां हैं वो उसके साथ मिसट्रीटमेंट एंड मिसबिहेवियर वो करना शुरू कर देती. सबसे पहले जो ये गोनरिल होती है, वो गोनरिल अपने फादर को डांटती रहती है कि जो तुमने ये 100 लोग पाल रखे हैं, 100 नाइट्स पाल रखे हैं अपने साथ, ये 100 लोग अपने साथ रखना कुछ जरूरी नहीं है. 20 से भी काम यह है कि 50 लोगों से भी काम चल सकता है, 40 लोगों से भी काम चल सकता है. तो इतने लोगों को मैं अपने यहाँ पे ठहरा नहीं सकता. मैं तो इतने लोगों को मैं अपने यहाँ ठहरा नहीं सकती हूँ, मैं इतने लोगों का खाना पीना नहीं कर सकती. इसके बाद व्हेन लियर अराइव्स रीगन्स कैसल, हर younger daughter with 100 knights and jesters, Lear also receives the same kind of mistreatment and misbehavior from Regan. So at the same moment, Gonril also arrives, and together both of the sisters compete with each other in humiliating Lear before his followers. In the meantime, his best friend, Earl of Kent, arrives in the house of Gonril, and after finding his best friend Lear in humiliating situation, he bemoans, he laments about his best friend, and his servant fool also laments to see the situation of his master. But now Earl of Kent arrives in the guise of in the getup of Caius, C-A-I-U-S. जो अर्ल ऑफ कैंट है वो काइस
के भेष में आता है गॉनरिल के यहाँ। और वो ये जब सब कुछ वो देखता है तो उसको बहुत दुख होता है। इस सब को देखकर किंग लियर का जो बेस्ट फ्रेंड है अर्ल ऑफ कैंट, जो केस के जो भेष में आता है, और उसका फूल, उसको बहुत दुख होता है। एंड एंड Lear curses both of the daughters and both of the sisters, drives him out in the stormy night. और जो किंग लियर की दोनों जो बेटियां होती हैं वो किंग लियर को स्टोर्मी नाइट में बाहर निकाल देती। बिल्कुल उसी समय जो एडगर होता है, जो ग्लोसेस्टर का जो छोटा बेटा होता है, वो भी अपना भेष बदलकर एज ए पुअर टॉम वो किंग लियर से वो मिलता है। और उनकी और उनको और किंग लियर के जो दो फॉलोवर्स थे फूल एंड कैंट, उनके साथ वो किंग लियर के साथ ही वो रहता है। आफ्टर दिस ग्लोसेस्टर फाइंड शेल्टर फॉर लियर and his ragged followers Cant, Fool and Poor Tom at farmhouse, but Gloucester was not able to recognize Edgar in guise of Poor Tom. इसके बाद जो ग्लोसेस्टर होता है वो किंग लियर की हेल्प करता है और वो उनको एक फार्म हाउस पर ठहराता है, किंग लियर को और उसके फॉलोवर्स को। कौन कौन से थे फॉलोवर्स? एक तो था अर्ल ऑफ कैंट इन गाइज ऑफ गायस, एंड हिज फूल एंड एडगर इन गाइज ऑफ पुअर टॉम। बट जो ग्लोसेस्टर होता है वो अपने बेटे को उसके भेष में पहचान नहीं पाता है। अब जब ये बात सॉरी अब जब ग्लोसेस्टर किंग लियर को उसके फॉलोअर्स के साथ अपने फार्म हाउस पर ठहराता है तो लियर उस समय तक पागल हो जाता है। एंड लियर नाउ टोटली गेट्स मैड एंड एड्रेसेस फूल एंड पुअर टॉम एज ऑनरेबल judges to hold a mock trial of Gonville and Regan, charging them with ingratitude. वो अपने पागलपन में फूल और पुअर टॉम को ऑनरेबल जज कहकर वो पुकारता है और वो ये कहता है कि मैं अपनी दोनों बेटियों पर मुकदमा करना चाहता हूं क्योंकि उन दोनों ने मेरे साथ एहसान फरामोशी की है। इसके बाद जब ग्लोसेस्टर के ये कैसल में कॉर्नवाल एक को ये बात पता लगती है कि ग्लोसेस्टर ने किंग लियर की हेल्प की है, तो वो क्या करता है, कॉर्नवाल और लियर की जो छोटी बेटी होती है रीगन, वो ग्लोसेस्टर की आंखों को निकाल लेते हैं। और बिल्कुल उसी समय जो रीगन होती है वो ग्लोसेस्टर को ये बताती है कि तुम्हारा जो छोटा बेटा है एडगर, योर रियल सन, ही इज योर लॉयल सन, वो तुम्हारा लॉयल सन है और तुम्हें जो धोखा दिया है वो दिया है तुम्हारे बास्टर्ड सन ने, इट मींस एडमंड ने। और एडमंड ने ही हमको ये बात ये बताई है कि तुमने किंग लियर की हेल्प की है। अब इस बात को सुनकर जो ये है ग्लोसेस्टर जो है वो बहुत पछताता है बिकॉज ही मिसजज्ड हिज रियल सन। तो अर्ल तो कॉर्नवाल और रीगन मिलकर
ग्लोसेस्टर की आंखों को निकाल लेते हैं और उसको कैसल के बाहर फेंक देते हैं। अब इस कैसल पर, इस कैसल में जो कभी ग्लोसेस्टर का हुआ करता था, अब ये कैसल रीगन और कॉर्नवाल यहां पे वो रहने लगे और साथ में ग्लोसेस्टर का जो ये बेटा था एडमंड, वो भी इनके साथ ही रहने लगा। और जब ग्लोसेस्टर को अंधा करके, आफ्टर मेकिंग हिम ब्लाइंड and throws him away from his own castle on the heath, heath बोलते हैं ओपन स्पेस, on the heath Edgar, his loyal son, his younger loyal son, finds his father blind and he starts serving him. वो अपने फादर की सेवा करने लगता है, लेकिन वो अपने फादर को ये नहीं बताता है कि वो उसका छोटा बेटा है। He serves his father in guise of पुअर टॉम। वो अपने आप को ये बताता है कि मैं पुअर टॉम हूं और मैं तुम्हारी सेवा करना मैं चाहता हूं। एंड ग्लोसेस्टर रिक्वेस्ट हिम टू टेक हिम टू ए हाई क्लिफ एट डॉवर वेयर ही प्लान टू कमिट सुसाइड। और वो अपने उस छोटे बेटे से, हालांकि वो उसको पहचान नहीं पाता कि उसको छोटा बेटा, लेकिन वो पुअर टॉम से, इट मींस एडगर से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो एक ऊंची पहाड़ी पर मुझे वो ले जाए, क्योंकि वो आत्महत्या करना चाहता है, क्योंकि बिकॉज उसके अंदर जो है बहुत भारी ये रिपेंटेंस है, ये गिल्ट है कि वो अपने छोटे बेटे को पहचान नहीं पाया। इतने में एक सूचना मिलती है कॉर्नवाल को कि कॉर्डेलिया ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इंग्लैंड पर, यानी कि ये ब्रिटेन पर हमला कर दिया। और कॉर्डेलिया अपने फादर से टेंट में मिलती है और वो अपने फादर को कंसोल करने की कोशिश करती है। लेकिन होता क्या है, कॉर्डेलिया को भी पकड़ लिया जाता है, क्योंकि किंग ऑफ फ्रांस इस युद्ध में कहीं ना कहीं हार जाते हैं और कॉर्डेलिया को और किंग लियर को बंदी बना लिया जाता है। अब वो दोनों एक जेल में कैद हो जाते हैं। अब लेकिन एक कहानी में एक थ्रिलिंग ट्विस्ट आ जाता है। नाउ ए थ्रिलिंग ट्विस्ट कम्स इन द स्टोरी। इट इज रिवील्ड दैट, ये राज खुलता है कि गॉनरिल एंड एडमंड ग्लोसेस्टर का बास्टर्ड सन, कि गॉनरिल का और एडमंड का बहुत पहले से अवैध संबंध चल रहा है, एडल्ट्रस लव अफेयर चल रहा है, फॉर लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले से। एंड ओसवाल्ड, जो ये गॉनरिल का जो ये मैनेजर था, वो गॉनरिल का जो है लेटर वो एडमंड को वो जो है कि दिया करता था, और एडमंड का लेटर वो गॉनरिल को वो दिया करता था। अब क्योंकि जो एडमंड है वो रीगन के साथ रह रहा है और उसके हस्बैंड के साथ रह रहा है, तो रीगन के हाथ वो लेटर लग जाता है जो ओसवाल्ड एडमंड को देने आया था, का लेटर, गॉनरिल का लेटर। तो कहानी में ये ट्विस्ट आ जाता है, क्या कि एडमंड का प्रेम संबंध गॉनरिल से चल रहा है बहुत पहले से, और जो ये गॉनरिल का जो ये मैनेजर है वो उनके जो लव लेटर्स हैं वो आपस में एक्सचेंज करता है। मतलब उसका लेटर वो उसको देता है और उसका लेटर वो उसको देता है। ही वॉज ए मैसेंजर ऑफ लव लेटर्स। तो एक दिन जो रीगन होती है, जो इस समय अपने हस्बैंड और एडमंड के साथ रह रही है, वो एक दिन ओसवाल्ड से वो लेटर ले लेती है और वो लेटर पढ़ लेती है। अब
रीगन को ये बात पता लग जाती है कि मेरी बड़ी बहन का चक्कर एडमंड से चल रहा है। अब एक ट्विस्ट और आ जाता है, वो क्या? क्योंकि रीगन का चक्कर भी एडमंड से चल रहा होता है, क्योंकि इस समय रीगन और उसका जो हस्बैंड है वो एडमंड के साथ ही रह रहे हैं ग्लोसेस्टर के ये जो है वो कैसल में। अब लव ट्रायंगल हो जाता है, रीगन और ओसवाल्ड, सॉरी, रीगन एंड ये और उसकी जो ये बड़ी बहन है ये गॉनरिल, वो दोनों एक ही आदमी से प्यार करती हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड। इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड, both of the sister have adulterous love affair to Edmund, son of bastard son of Gloucester। इतने में एक न्यूज और आती है, वो क्या? जो कॉर्नवॉल के पास आती है, वो क्या? कि कॉर्नवॉल की मौत हो चुकी है। उसकी मौत हुई कैसे? उसकी मौत ऐसे हुई कि जब कॉर्नवॉल और रीगन ग्लोसेस्टर की आंख निकाल रहे थे, तो ग्लोसेस्टर का एक नौकर ये सीन बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। बट इन दिस इंटरसेशन, लेकिन इस बीच बचाव में जो जो ये ग्लोसेस्टर का जो ये नौकर होता है वो कॉर्नवाल को जख्मी कर देता है, और वो जो एक ये जख्म होता है वो एक फैटल, एक ये वुंड में तब्दील हो जाता है, एक बहुत नासूर ये जख्म में तब्दील हो जाता है, और इसी नासूर जख्म के कारण जो ये कॉर्नवाल है वो मर जाता है। अब क्योंकि जो रीगन है वो एडमंड के साथ रह रही है, तो उसके पास अब पर्याप्त समय है फॉर बीइंग इन लव विद एडमंड। अब रीगन ये सोचती है, क्योंकि उसकी जो बहन है वो भी एडमंड से प्यार करती है, तो रीगन अब ये सोचती है वो क्यों ना एडमंड से अब शादी कर ले, बिकॉज गॉनरिल भी एडमंड से प्यार करती है बहुत पहले से। सो नाउ रीगन डिसाइड्स टू गेट मैरिड टू एडमंड बिकॉज हर हस्बैंड इज नाउ डेड। नाउ ड्यूक ऑफ अल्बेनी एंड Gonril joined Regan and Edmund against army of France, but army of France was overthrown. Now Edmund has shown his love to both of the sisters, लेकिन जो एडमंड है वो दोनों ही बहनों से प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए बार बार कसम खाता रहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। After this, Edgar, disguised as champion and supporter of Duke of Albany, he shows a letter to Duke of Albany of Gonril, which was supposed to deliver to Edmund। जो लेटर एडमंड को जो है तो वो जो है कि वो कि दिया जाना था, वो लेटर जो एडगर है इन गाइस अपना भेष बदलकर अल्बेनी का पक्का समर्थक बनकर वो अल्बेनी को लेटर दिखाता और वो ये कहता कि देखो तुम्हारी जो ये पत्नी है वो एडमंड से प्रेम करती है और वो एक षड्यंत्र वो रच रही है तुमको मारने के लिए। अब इस बात पर जो ड्यूक ऑफ अल्बेनी है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो ये सोच लेता है कि वो अब लियर और उसकी बेटी को कुछ जो है एडमंड के वो चुंगल से वो छुड़ाएगा। लेकिन इसी बीच जो ड्यूक ऑफ अल्बेनी होता है वो एडगर को ये आदेश वो देता है कि तुम मेरी तरफ से एडमंड से लड़ोगे और इसी लड़ाई में
जो एडगर होता है वो एडमंड को मार देता है। लेकिन इससे पहले, लेकिन जब वो फैटली वुंडेड हो जाता है, वो अपने किए पर बहुत पछताता है और वो ये सोचता है कि मैं लियर और उसकी बेटी को मैं छोड़ दूंगा, और वो इसके बारे में एक लेटर भी इशू करता है। लेकिन जब तक वो लेटर वहां तक पहुंच पाता है तो उस समय तक एडमंड के जो आदमी होते हैं वो कोर्डेलिया को मार चुके होते हैं। फिर लेकिन होता क्या है फिर बाद में, रीगन मर जाती है। क्यों मर जाती है? क्योंकि उसकी जो बड़ी बहन है ये गोनरिल, वो उसको जहर दे देती। लेकिन जो ये गोनरिल है वो भी मर जाती है। क्यों? शी आल्सो कमिट सुसाइड। पहले तो वो अपनी छोटी बहन को जहर दे देती है, लेकिन फिर उसके बाद वो खुद आत्महत्या कर लेती है। जब वो ये बात को सुनती है कि एडमंड मर चुका है, तो वो अपने आप भी मर जाती है, जहर खा लेती है। और फिर इसके बाद जब किंग लियर ये देखता है कि उसकी सबसे प्यारी बेटी, सबसे लॉयल बेटी मर जाती है, तो किंग लियर भी उसकी लाश को अपने हाथों में लेकर मर जाता है। नाउ एडमंड, now Duke of Albany, restores to Kent and Edgar their rightful properties and title. और यहां पे किंग लियर, द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर खत्म हो जाती है। नाउ लुक एट द इंपोर्टेंट, now look at the important quotation of King Lear. तो नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, ये जो कोटेशन है वो किंग लियर कोर्डेलिया को बोलता है जब वो कोर्डेलिया से कहता है कि तुम भी अपना प्रेम मेरे प्रति एक्सप्रेस करो, हाउ मच यू लव मी एज ए डॉटर। बट कोर्डेलिया रिफ्यूजेस टू फ्लैटर हिम विद एग्जेजरेटेड वर्ड्स। वो क्योंकि जो कोर्डेलिया है वो कहती है नथिंग, तो किंग लियर भी कोर्डेलिया को ये बोलता है नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, तो कुछ से तो, अगर तुम कुछ नहीं कह रही हो तो कुछ नहीं से कुछ भी नहीं आएगा। एंड किंग लियर डिप्राइव्स कोर्डेलिया ऑफ ऑल द शेयर फ्रॉम हिज किंगडम। तो ये जो कोटेशन है वो वहां बोली जाती है। हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। ये बात किंग लियर बोलता है जब ये गोनरिल अपने फादर को ह्यूमिलेट्स करती है टू reduce his retinue. Lear compares ingratitude to a serpent bite. तो जो किंग लियर है वो अपनी वो बेटियों की जो कंपैरिजन है वो नागिन के वो दांतों से वो करता है। ओ लेट मी नॉट बी मैड, नॉट मैड स्वीट हेवन। लियर ये बात जो है कि वो, तो किंग लियर जब ये बात को, मतलब जब ये बात वो महसूस करने लगता है कि वो पागल हो रहा है, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर तुम मुझे पागल मत करो। ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चीक्स रेज ब्लो। किंग लियर ये सेंटेंस बोलता है जब उसकी जो बेटियां हैं वो तूफानी रात में लियर को और उसके फॉलोअर्स को महल से बाहर निकाल देती। आई एम ए मैन मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग, ये सेंटेंस भी लियर बोलता है। कब बोलता है? क्योंकि जो ये किंग लियर है वो ये विश्वास करता है कि हालांकि मैंने बहुत ये गलत किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो है तो ये मुझे उसका फल मिल रहा है।
As flies to wanton boys are we to gods. ये जो सेंटेंस है वो कौन बोलता है? वो बोलता है ग्लोसेस्टर। क्या बोलता है? एज फ्लाइज टू wanton boys are we to the gods, कि जैसे एक ये बच्चा मक्खियों को मारने में आनंद लेता है, ऐसे ही ईश्वर भी हमें सताने में आनंद लेता है। और बिल्कुल यही लाइन थॉमस हार्डी ने अपने नोवेल ट्रैश ऑफ द डर्बर विलेज के बारे में बोली हुई है। सॉरी, ट्रैश ऑफ डर्बर विलेज में थॉमस हार्डी ने ये लाइन बिल्कुल सेम कोट की हुई है। ठीक है, कौन से नॉवल में? ट्रैश नॉवल में। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये हार्डी ने ये लाइन किस ये ड्रामा से ली है। कभी कभी ये भी आता है कि ये लाइन जो है वो हार्डी की है या फिर वो शेक्सपियर की है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। When we are born, we cry that we are come to this great stage of fools. ये सेंटेंस किसका है? ये लियर का है कि हम जब इस संसार में हम आते हैं तो हम बहुत रोते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि हम मूर्खों के स्टेज पर आ गए। द व्हील इज कम फुल सर्कल, आई एम हियर। और ये जो सेंटेंस है, ये जो डायलॉग है, वो एडमंड बोलता है। कब बोलता है? बिफोर हिज डेथ। वो जब अपने किए पर पछताने लगता है। वो कहता है कि जो ईश्वर ने कि जो ईश्वर है वो कर्म का एक वो चक्र चलाता है, तो जो जैसा करता है उसे ऐसा ही मिलता है। The oldest hath borne most, we that are young shall never see so much nor live so young। ये एडगर की फाइनल लाइंस होती है। एडगर मॉन्स लियर वो जब किंग लियर के बारे में वो जब विलाप करता है, द ओल्डेस्ट हैथ बोर्न मोस्ट, वी दैट आर यंग एक्नोलॉजिंग दैट एल्डर सफर्स एंड एंड्योर मोर। वो ये कहता है कि इस संसार में जो बूढ़े जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा बर्दाश्त करते हैं। कम नॉट बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज wrath। ये सेंटेंस किंग लियर कब बोलता है? ये सेंटेंस किंग लियर उस समय बोलता है जब कैंट कोर्डेलिया का पक्ष रख रहा होता है लियर के सामने। तो जो ये किंग लियर है वो अपने आप को क्या बताता है? कि वो ड्रैगन बताता है, हैं? और वो ये कहता है नॉट कम बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज wrath, कि वो ये ड्रैगन के और उसके जो है जो और जो ये गुस्सा है वो उसके बीच में ना आए। Truth is a dog must to kennel, he must be whipped out when lady the wretch may stand by the fire and stink। ये जो लाइन है वो फूल बोलता है। फूल मॉक्स लियर आफ्टर कोर्डेलियाज बैनिशमेंट। जब फूल ये देखता है कि किंग लियर ने कोर्डेलिया को बाहर निकाल दिया, तो वो ये लाइन को ये बोलता है, ट्रूथ इज पनिश्ड व्हाइल फॉल्सहुड गॉन द लैंड रीगन एंजॉय कंफर्ट। कि आज तुमने ये बात साबित कर दी है कि इस दुनिया में जो सच होता है उसी को सजा मिलती है, और जो झूठ होता है उसी को इस दुनिया में आराम मिलता है। तो shouldst not have been old, though hadst been wise। ये लाइन बोलता है फूल, किसको बोलता है? लियर को बोलता है। आफ्टर लियर डिवाइड्स हिज किंगडम। वो ये बोलता है कि तुम्हें उस समय तक बूढ़ा नहीं होना चाहिए था जब तक कि तुम जब तक के बुद्धिमान ना हो जाते। is there any cause in nature that makes these hard hearts। किंग लियर ये लाइन बोलता है इन मैडनेस, अपने ये पागलपन में। लियर आस्क whether nature produces such ungrateful children। क्या वाकई इस प्रकृति ने इस
इस प्रकार के एहसान फरामोश बच्चों को इस संसार में वो लाया है। थ्रू टैटर्ड क्लोथ्स ग्रेट वाइसेस डू अपीयर, ये लाइन बोलता है किंग लियर जब वो पागल हो जाता है कि इस संसार में अगर किसी के जो कपड़े हैं अगर वो फटे हुए होते हैं तो वो उसकी हर बुराई सामने आती है, लेकिन अगर किसी ने बहुत शानदार कपड़े ये पहने हो तो उसकी हर बुराई उन शानदार कपड़ों में छिप जाती है। ये लाइन बोलता है कौन? किंग लियर। और वो किसको बोलता है? ग्लॉसेस्टर को बोलता है जब वो पागल हो जाता है। द गोड्स आर जस्ट एंड ऑफ आर प्लीजेंट वाइसेस, ये लाइन जो है वो बोलता है एडगर एड्रेसिंग एडमंड आफ्टर हिज डिफीट, वो जब एडमंड को युद्ध में हरा देता है और ये जब एडमंड पछताने लगता है कि डिवाइन जस्टिस punishes human sins, Edmund's lust led to downfall, कि जो ईश्वर है वो बहुत ही न्यायप्रिय है और जो सब ये बुराइयां हैं वो उनको एक ना एक दिन जरूर सजा देता है। एंड माई पुअर फूल इज हैंड नो वन नो लाइफ, why should a dog horse a rat have life and though no breath at all, ये लाइन किंग लियर उस समय बोलता है जब किंग लियर के हाथों में उसकी बेटी लाइफलेस पड़ी हुई होती है और वो बहुत ही दुख में ये लाइन बोलता है कि मेरी प्यारी ये बेटी, मेरा प्यारा ये बच्चा, जब इसके अंदर कोई भी सांस नहीं है। इस संसार में हर एक के पास सांस है, मन है, सांसें चल रही हैं। कुत्ते के ये डॉग है, हॉर्स है, रैट के अंदर भी ये जो है कि लाइफ चल रही है, लेकिन मेरी जो ये बेटी है उसके अंदर कोई सांस नहीं चल रही है। माई एंड माई पुअर फूल इज हैंड नो लाइफ। ये लास्ट लाइन जो एडगर बोलता है, स्पीक व्हाट वी फील नॉट व्हाट वी ought टू से, वो कहता है कि हमें इस दुनिया में वो नहीं बोलना चाहिए जो हमें नॉट व्हाट वी ought टू से, हमें वही बस बोलना चाहिए जो हम महसूस करते हैं। स्पीक व्हाट वी फील, हमें वो बोलना चाहिए जो हम महसूस करते हैं। नो व्हाट वी ought टू से, हमें वो नहीं बोलना चाहिए जो हमें बोलना चाहिए, जो हमें नहीं बोलना चाहिए। Now let's look at important questions. Nothing will come of nothing. Who spoke these words? Nothing will come of nothing is spoken by Lear. To whom? Lear ये सेंटेंस को बोलता है, किसके लिए बोलता है? कोर्डेलिया के लिए बोलता है। How sharper than a serpent tooth it is to have a thankless child refers to which character? Goneril, ये जो डायलॉग बोलता है ये किंग लियर, हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। तो ये डायलॉग जो किंग लियर है वो जो है किसके लिए बोलता है? गॉनरिल के लिए बोलता है। विच कैरेक्टर एक्ट एज ए लियर्स कंसाइंस एंड ट्रूथ टेलर थ्रू आउट द प्ले? फूल, कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो लियर को हमेशा सच्ची एडवाइस वो देता रहता है पूरे वो प्ले में? कौन है? फूल देता रहता है। Which character act as Lear's conscience and ये तो आ गया, फूल ही है ये जो है कि कुछ दोबारा आ गया। As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. ये लाइन कौन बोलता है? सॉरी, ये जो है लाइन एक्सप्रेसेस विच थीम, ये लाइन कौन सी थीम एक्सप्रेस करती है? ह्यूमन हेल्पलेसनेस। Which character disguises himself as poor Tom? Poor Tom का जो ये है भेष, वो कौन सा कैरेक्टर अपने ऊपर ओढ़ के रखता है? एडगर, यंगर सन ऑफ ग्लॉसेस्टर। Which of the following is Lear's tragic flaw? Hamertia, इनमें से क्या ट्रेजिक यानी कि
किंग लियर का क्या ट्रेजिक फ्लॉ है, यानी कि हेमर्शिया है? ब्लाइंडनेस टू ट्रुथ। लियर misjudges Cordelia and trust false daughter. His pride, rashness and inability to see the truth cause his downfall. तो उसका ये pride, rashness and inability to see truth cause his downfall. Which Shakespearean theme is central to King Lear? Which Shakespearean theme is central to King Lear? Filial ingratitude. Filial किसको बोलते हैं? संतान का एहसान फरामोशी, संतान से संबंधित है ये जो है, जो ये है ना वर्ड की फिलायल, ये संबंधित है ऑफ स्प्रिंग यानी कि संतान से। तो संतान की जो एहसान फरामोशी है वो इस ड्रामा के अंदर दिखाई गई है और वही इस ड्रामा की सेंट्रल थीम भी है। इन किंग लियर, ग्लॉसेस्टर्स फिजिकल blindness symbolizes what? Insight and recognition. After being blinded, Gloucester sees truth more clearly. So, Gloucester's physical blindness symbolizes what? Insight and recognition. Which of the following is not true about Cordelia? She refuses to flatter Lear. She marries the King of France. She leads an army against Lear. इनमें से कौन सी बात सच नहीं है? She leads an army against Lear. Who speaks the final line of King Lear? Edgar बोलता है final line. Edgar speaks the closing line. The oldest had borne most this word. Which character says I am a man more sin against than sinning? ये बोलता है लाइन King Lear. I am a man more sin against sinning. Who kills Cordelia? Cordelia को कौन मारता है? एडमंड। हालांकि वो खुद नहीं मारता है, वो अपने आदमियों को वो भेजता है मारने के लिए। Through tattered clothes, great vices do appear, robes and fern ground hide all. ये लाइन कौन बोलता है? सॉरी, What Lear means, इस लाइन का लेयर से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? The rich can hide their sins, कि जो अमीर है वो अपने पाप छुपा लेते हैं अपनी खूबसूरत रॉब्स यानी कि कपड़ों के माध्यम से। Who says the wheel is come full circle, I am here? ये लाइन कौन बोलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये बोलता है एडमंड, जब वो लास्ट में मरने वाला होता है कि ईश्वर ने अपना काम कर दिया है। Which critics saw King Lear as Christian tragedy? कौन से क्रिटिक ने किंग लियर को एक क्रिश्चियन ट्रेजेडी माना है? शोइंग ह्यूमन रिडेम्पशन थ्रू सफरिंग, एसी ब्राडले ने माना। एसी ब्राडले ने किंग लियर को क्रिश्चियन ट्रेजेडी माना है। एंड माई पुअर फूल इज हैंग्ड, ये लाइन कौन बोलता है? किसको रेफर की जा रही है? ये लाइन लियर बोलता है। किसके लिए बोलता है? कोर्डेलिया के लिए बोलता है। ये लाइन कौन बोलता है? लियर बोलता है। किसके लिए? कोर्डेलिया के लिए। ठीक है। The gods are just and of our pleasant vices make instrument to plague us. ये लाइन कौन बोलता है? ये एडगर बोलता है। किसको बोलता है? अपने भाई को बोलता है, वो जब उसको फैटली वुंडेड कर देता है कि जो ईश्वर है वो हमारे पापों का हमें जरूर फल देता है। When we are born, we cry that we are come to this great stage of fools. ये लाइन कौन बोलता है? ये बोलता है लियर अपनी मैडनेस में। Speak what we feel, not what we ought to say. ये लाइन कौन बोलता है? The final line suggests truth should be spoken from the heart. कि हमें सच्चाई बोलनी चाहिए अपने हृदय से। हमें वो नहीं बोलना चाहिए जो हमें नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हमें सच्चाई बोलनी चाहिए। Now, signing off for now, and thanks for watching, and you can contact for complete course for UGC NET on this number.
As for now, we shall meet in our next video. As for now, bye bye.